ज्यादा कीमती है। And if you can learn that tonight, और अगर आज रात आपने ये सीख लिया, your life will be filled with the evidence of victory after victory after victory after victory after victory in Jesus' name. तो आपकी जिंदगी में जय पर जय पर जय पर जय के सबूत भरे हुए होंगे यीशु के नाम में। Is there anybody in Arunachal who wants to live in victory? Show me your hand. If you say, अरुणाचल में कोई है जो अपने जीवन में जय में जीना चाहता है? Amen. You know what? More than you desire victory, your heavenly Father desires victory for you. जितना आप जय में जीना चाहते हो उससे कई ज्यादा आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप जय में जियो। You were born for victory. आप जय के लिए पैदा हुए हो। You were born for dominion. आप प्रभुता करने के लिए पैदा हुए हो। See, until you understand why you were created, you cannot function fully for what you were created for. जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप किस लिए बनाए गए, तब तक आप पूरी तरह वो नहीं कर पाओगे जिस लिए आप बने हो। So many people say we were created to worship God. बहुत से लोग कहते हैं हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बने हैं। Yes, we will worship Him for eternity. हाँ, हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे। That is our greatest privilege. ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। But the Bible does not teach us that we were created for the sole purpose of worshiping God. लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम इस एकमात्र मकसद से बने कि हम परमेश्वर की आराधना करें। Because God has trillions of angels in heaven who can worship God much better than we do. क्योंकि परमेश्वर के पास करोड़ों स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में जो हमसे बहुत अच्छी आराधना करना जानते हैं। So it was not that God wanted more worship leaders, so He created humans. तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को वर्शिप लीडर्स चाहिए थे इसलिए उसने मनुष्य को बना दिया। Anybody wants to know why we were created? कोई जानना चाहता है हम क्यों बनाए गए? Right? Now don't take me wrong. मुझे गलत मत समझना। I love worship. मुझे आराधना से प्यार है। I'm a worshipper myself. मैं खुद भी आराधना करता हूँ। But when God created mankind, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, the Bible says God spoke to Himself. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप से कहा। He said, "Let us make man in our own image and likeness." उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। Let us make man in our own image and likeness. आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। And let them have dominion. और उन्हें प्रभुता करने को देते हैं। What was the first thing that God thought when He thought about creating humans? परमेश्वर ने सबसे पहली क्या बात सोची जब उसने मनुष्य को बनाया? First thing, पहली बात, it was dominion. वो प्रभुता थी। He created you to walk in dominion. परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने के लिए बनाया है। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ। I said God created you to walk in dominion. मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने के लिए बनाया है। Now what does that even mean? और इसका मतलब क्या है? What does it mean to walk in dominion? प्रभुता करने का मतलब क्या है? This word dominion comes from the Hebrew word radah. ये जो प्रभुता शब्द है इब्रानी के रडा शब्द से आता है। And that means to bring everything under your feet. और इसका अर्थ है सब बातें तुम्हारे पांव के नीचे हो जाना। To bring everything under your feet. सब बातों को तुम्हारे पांव के नीचे कर देना। Psalm chapter 8 verses 4 onwards, the Bible says, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him?" भजन 8 उसके 4 से आगे लिखा कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति रखता है, तू उसका ध्यान रखता है। Verse 5, can you put verse 5? Verse 5. और 5वीं आयत,
For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. The word here, angels, is not actually the word angelos. It's not the word angels. It's the word Elohim. That means God. यहाँ पर स्वर्गदूत शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया. परमेश्वर का एलोहीम शब्द, परमेश्वर जिसका मतलब है, वो इस्तेमाल किया That's गया. why the Hindi translation is good translation. इसीलिए हिंदी में यहाँ पर सही लिखा है. Jesus. अब टाइम आ गया कि आप जान लो कि आप मसीह यीशु में कौन हो. Next verse. You have made him. What does the Bible say? Bible Now क्या here कहता है? again, Bible teaches us why we were created. बाइबल फिर से यहाँ पर हमें सिखा रही है कि हम क्यों बनाए गए. You have made him to have dominion. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. That is the definition of dominion. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है. तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. ये प्रभुता का मतलब है. So I got saved. मैंने उद्धार पाया. I became a worship leader. मैं एक वर्शिप लीडर बन गया. I used to lead worship on Sundays, मैं संडे को वर्शिप लीड करता, but then live a defeated life from Monday till Saturday. लेकिन फिर मंडे से सैटरडे तक हारा हुआ जीवन जीता. I knew all the songs मुझे सारे गाने पता थे at that time, उस समय, but there was no evidence of victory in my life. पर मेरी जिंदगी में जय का कोई सबूत नहीं था. I was still depressed. मैं तब भी डिप्रेस था. I was suicidal. आत्महत्या करना I चाहता was था. sick. बीमार था. I was in debts. कर्जों में था. I had low self-esteem. मैं अपने आप को बहुत कम समझता था. I used to love Jesus, मैं यीशु से तो प्यार करता था, but I was living a defeated life. लेकिन एक हारा हुआ जीवन जी रहा था. Until God had to open my eyes. जब तक परमेश्वर ने मेरी आंखें नहीं खोली. So I want to teach you something that will really help you live a victorious life. तो मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो सच में आपकी मदद करेगा एक जयवंत जीवन जीने में. Because this is your heavenly Father's will for you. क्योंकि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए. 1 John 5:4 says, "Whosoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith." पहला यूहन्ना 5 उसके 4 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो सब बातों पर जय पाता है, और ये है वो जय जिससे हम जय पाते हैं, हमारा विश्वास. This is the victory that overcomes the world, even our faith. ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है, हमारा विश्वास. क्या चीज है जो संसार पे जय पाती है? हमारा यानी अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप कभी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते. That means if your faith is weak, you can never live a victorious life. अगर जयवंत जीवन जीना है तो अपने विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसमें परिपक्व होना पड़ेगा. If you want to live a victorious life, you have to strengthen your faith, you have to mature in faith. Amen. कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? You want to please your heavenly Father. If you have the desire, I want to please my Father. Come on, show me your hand. कितने लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, जिनकी एक चाहत है अपने स्वर्गीय पिता को मैं खुश करना चाहता हूँ. Okay. आप जानते हैं बहुत सारे मसीहों से जब आप मिलोगे, उन्हें लगता है ज्यादा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है. You know, when you meet many believers, they think God is pleased by more fasting. मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा. If I fast more, if I pray more, God will be pleased. आप जानते हो फरीसी बहुत उपवास करते थे. Do you know Pharisees used to fast a lot? हफ्ते में
मिनिमम 3 बारी 3 दिन एक हफ्ते में उपवास करते थे। Minimum 3 days a week, Pharisees used to fast. लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते थे। They would pray long prayers. और जब यीशु ने उनको देखा तो कहा, सांप के बच्चों। But when Jesus saw them, he said, brood of vipers. हम लोग उपवास और प्रार्थना एक रीति रिवाज की तरह, एक रिलीजियस रिचुअल की तरह भी कर सकते हैं। We can fast and pray as a religious ritual, as a duty, विदाउट फेथ। बिना विश्वास के। आप जानते हैं, कैन यू पुट Hebrews 11:6? इब्रानी 11:6 वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। The word says, without faith, it is impossible to please God. क्या है?